Chapter number 2, Real Numbers. In previous classes, we have learnt about natural numbers, integers and real numbers. N is a set of natural numbers. 1, 2, 3, 4 and so on are natural numbers. W is a set of whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4 and so on are whole numbers. I is a set of integers, all negative and positive numbers, including 0, means all the numbers on number line are called set of integers. Q is a set of rational number, that is rational numbers means P upon Q. P upon Q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स आएंगे that is fraction are called as rational numbers. And set of real numbers, R is a set of real numbers, all numbers are called as set of real numbers. So N subset W, subset I and I subset Q and Q subset R. Okay, all are infinite sets. Okay, then what is terminating and non-terminating type? Last year you have solved this type of questions, terminating and non-terminating. Terminating and non-terminating recurring, and here non-terminating recurring. टर्मिनेटिंग में फुल डिवीजन होगा. ओके, यहाँ पर टर्मिनेटिंग में फुल डिवीजन, फ्रैक्शन का अगर आपको डिवीजन करना है तो वहाँ पर ये टर्मिनेटिंग में फुल डिवीजन होगा, वहाँ पे रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में वो एक नंबर्स रिकर होते जाएंगे, वो रिपीट होते जाएंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. फॉर एग्जाम्पल 1, 2/5, सॉल्व दिस. 2/5 मीन्स 0.4. डिवीजन यहाँ पर खत्म हो गया, सो इट इज रिकरिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग टाइप. ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप इट इज 17/36. इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.47222 ये रिकर हो रहा. ओके, 0.47222 ये नंबर रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा. सो वी कैन राइट 47.2, जो रिकर हो रहा उस पर इसे डॉट देना है. सो दिस इज द रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स रिपीटेशन चालू है, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. और यहाँ पर डिवीजन अगर खत्म हो गया दैट इज द टर्मिनेटिंग टाइप. ओके, सो प्रैक्टिस सेट 2.1. क्वेश्चन नंबर 1, classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. First problem is 13 upon practice set 2.1. Practice set 2.1. First problem, it is terminating or non-terminating. So 13/5. So solve this. 13/5. 13 divided by 5. 5 2s are 10. Okay, 3.5 6s are 30. कंप्लीट डिवीजन हो गया, मीन्स 13/5 इक्वल टू 2.6. सो दिस इज टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन इज दैट classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. So this is terminating type because यहाँ पर division खत्म हो गया, remainder is 0. So this is the terminating type. अगर यहाँ पर recur होते हैं कुछ number, that is the non-terminating type, means 2/11. Second problem is 2/11. Solve this. 2 divided by 11. 0.11 1s are 11. 9 again 0. 11 8s are 88. 11 1s are 11. 9 again 11 8s are 88. Again 20 again 11 1s are 11. Again 90. 11 8s are 88. So this is 1818 recur हो रहा है यहाँ पर. So therefore we can write 2/11 equal to 0.18 bar.
अगर 2 नंबर रिकर होंगे तो उस पर बार लिखना है, और अगर सिंगल नंबर रिकर हो रहा है तो उस पर डॉट देना है। यहाँ पर 18 रिकर हो रहा है, रिपीटेशन चालू है, तो 0.18। सो इसका मतलब है दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। देयरफॉर लास्ट में लिखना है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। एकदम इजी क्वेश्चन है, नॉन टर्मिनेटिंग recurring type. Okay, then question number 2, write the following rational numbers in decimal form. सेम प्रॉब्लम, जो भी आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में आ गए, इसी टाइप से करना है, सिर्फ आंसर फाइंड करना है, ये नहीं लिखना है दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसके लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा और ऐसे उसका आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में। हो गए उसका आंसर, इसे लिखना है 0.18, बस 18 as 2.6. This is the decimal form. Okay, question number 2 you can solve. Question number 3, write the following rational numbers in P by Q form. Question number 3, write in P by Q forms. प्रॉब्लम नंबर 1, 0.6 डॉट, इसको दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट अस सपोज दैट लेट x इक्वल टू 0.6 डॉट। ओके, x इक्वल टू 0.6 डॉट, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, मीन्स अगर ऐसा रहेगा 3.14, सो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर ऐसा रहेगा 8.342, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। multiply by 10 on both side. So multiply by 10 means 10x equal to, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर करके नहीं देखना है मल्टीप्लाई, सिर्फ ये नंबर इधर लिख दो 6 एज इट इज़ डॉट, यहाँ पर 6 आएगा, ये नंबर इधर लिखना है और ये 6 डॉट एज इट इज़ आएगा, मीन्स 6 डॉट 6.6 डॉट, सिर्फ ये 6 इधर लिखना है। एंड देन इक्वेशन नंबर 2, next step, subtracting equation 1 from 2 means write down here equation 2 minus equation 1. But 10x minus x, 10x minus x equal to 6.6 dot minus 0.6 dot. Okay, 10x minus 1x, here x coefficient of x is 1, so 10x minus 1x equal to 9x equal to, and 6 minus 0 means 6, and 6 dot minus 6 dot means 0, 6.6 dot minus, so 6 minus 6 0, and 6 minus 0 6, so answer is 6.0, then we can write only 6, so 9x equal to 6, and then find the value of x, x equal to 6 upon 9, so x equal to 6 by 9 means 3 2s are 6, 3 3s are 9, so x equal to 2 by 3, so x means 0.6 dot, so 0.6 dot equal to 2 by 3, so this is the P by Q form. The second problem is second question. Second, third, both are same. Fourth and 5 questions are reduced. Okay, second you can solve, and third problem 3.17 bar. Second problem you can solve second problem. Third problem and solution. Okay, let x equal to 3.17 bar, इक्वेशन नंबर 1। हियर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड,
multiply by 100 on both side. Then multiply by 100. 100x equal to, अब इधर का नंबर इसके पास लिखो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे सीधे ये पूरा नंबर लिखना है इधर 317 पॉइंट, इधर का इधर लिखो 17 बार। सिर्फ यहाँ इसके पास इधर वाला नंबर लिखना है और टोटल नंबर लिखो पॉइंट और पॉइंट के बाद का एज इट इज़। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मीन्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो 100x minus x equal to 317.17 bar minus 3.17 bar. Then 100 minus 1 is 99x equal to 317.17 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, सब्ट्रैक्शन करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर नंबर चालू करो, पॉइंट के बाजू में 3 है तो पॉइंट के बाजू में ही 3 लिखना है, पॉइंट के बाद 17 है तो पॉइंट के बाद 17 लिखना है एंड सब्ट्रैक्ट। सो 17 माइनस 17 0, 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 0 1, दैट इज 314.0 मीन्स 314 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x equal to 349.99, but x means 3.17, means 3.17 bar equal to 314.99, and this is the P by Q form. This is our third problem, and here practice set 2.1 is completed. If any doubt, call me. The next topic is irrational and real numbers.